सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट टुडेज सेशन. फाइन, तो जल्दी से शेयर करते रहो यार, हर किसी को शेयर करना है. तो चलो जल्दी से कल का रिकैप कर लेते हैं, कल क्या क्या पढ़ा था. फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी स्टडीड yesterday was the transit time. What is transit time? Transit time was the time taken by the voltage waveform to reach from the source end to load end. और ऐसा कुछ करके हम लोगों ने transit time को define करा था. It was L by Vp. L was the length of the transmission line and Vp was the wavelength that we were discussing. Apart from that, we also discussed about the effect of the transit time. क्या क्या effect थे transit time के? अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूं, so what are the effects that you can consider? The effect of the transition time was in case of low frequency operation. अगर ऑपरेशन हम लोगों ने बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी माना था, इन दैट केस योर ट्रांजिट टाइम वाज वेरी मच लेस देन द टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म. एंड इन केस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, ऑब्वियसली ठीक है, तो ये टाइम पीरियड काफी कम हो जाता था उस केस में. इन दैट केस यू नो दैट KVL KCLs वर एप्लीकेबल, बट इन दैट केस KVL KCLs वर नॉट एप्लीकेबल. So I hope you remember all these points. Everyone remembers all these points that we discussed yesterday. इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा था, इसके बाद अपना डिस्कशन हुआ था इस वेवफॉर्म के बारे में. हम लोगों ने इस पर भी डिस्कस किया था कि अगर ओके, आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड दैट द कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन, अगर हम पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर करें, देन फॉर द कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन द लेंथ बिकम्स वेरी मच लार्जर एज कंपेयर टू लैम्डा. सो इफ लेंथ बिकम्स वेरी मच लार्जर एज कंपेयर टू लैम्डा, सो अगेन द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजिट टाइम बिकम्स फेल्ड एंड वी कैन नॉट अप्लाई द KVL KCL फॉर द कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन. तो हम क्या करते थे, इसका एक छोटा सा सेगमेंट काट लेते थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट द लेंथ of the transmission line becomes very much less than lambda, then again we can apply the KVL KCL or we can ignore the effect of the transit time. So this was the discussion that we did yesterday. अगर यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लैरिटी है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में सब लोग बता दो, फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. Do you have clarity on all these points? So this is just the recap that we did. In this recap, I explained you the transit time, the effect of the transit time that we discussed, and this particular thing which we represented yesterday कि delta z का length अपने लिए important क्यों. Fine. Okay, so I hope everyone is with me. चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, if we are having a transmission line, so as I said yesterday that in this chapter we will always consider a parallel wire transmission line for all the things that we are going to derive. So this is the parallel wire transmission line. Inside the parallel wire transmission line you will be having the resistances, the conductances, capacitance L. So in this way you can design your parallel wire transmission line. तो ये L हो गया, ये C हो गया, अगेन ये आपका R हो गया, ठीक है, ये G हो गया, ये C हो गया, ऐसा कुछ. अब आप देख रहे होंगे नीचे भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, R, L, दिस इज योर अगेन R. तो ये फिर से अगर हम इसको R मान लें, ये देखो. So my one question is with you that if you are defining the resistance per unit length of a transmission line, so what do you understand by the resistance? Whether the resistance will be for upper conductor, lower conductor or both. So remember, if you are defining the resistance of a transmission line, that resistance will always be per unit length parameter that we explained yesterday why we are doing that. But you have to remember this R thing, or this R which is written here, this will be for upper conductor as well as for the both conductor. मतलब अगर ट्रांसमिशन लाइन के केस में आपको R दिया, in case of transmission line if R is given, obviously the unit has to be ohm per meter. Apart from the unit, you must also understand this R will be associated with the upper conductor as well as with the lower conductor. Similarly, the same thing happens with L also. L is given in the form of Henry per meter, and this L will be associated with upper conductor as well as with the lower conductor. What about G? G comes because of the dielectric or the insulator which is present between the conductors. तो G तो सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक की वजह से आएगा. And this C, this particular C is the factor which is coming because of the conductor as well as because of the dielectric. तो तीनों बातें याद रखना. R किसकी वजह से आ रहा है? सिर्फ कंडक्टर की वजह से. L किसकी वजह से आ रहा है? सिर्फ कंडक्टर की वजह से. G किसकी वजह से आ रहा है? Because of the dielectric medium which is present in this. And why? Because this C is coming. This C is coming because of the conductors as well as the dielectrics. तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है that which of the parameters of the transmission line is because of the conductor as well as because of the dielectric. So capacitance is the parameter which is because of the conductor as well as the dielectric. Resistances and inductances are because of the conductor itself, and G is the parameter which is only because of the
insulator or the dielectric which is present between the mediums. Fine, चलो. अच्छा, ये एक चीज याद रखना यार, ये आगे चल के हम लोग और डिस्कस करेंगे. ये देखो, इसके बीच में जो भी मीडियम होता है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, आप ईएम वेव में पढ़ते थे. सो दिस इज कंडक्टर, कलर चेंज कर लेते हैं. दिस इज कंडक्टर, दिस इज ऑल्सो कंडक्टर. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बन गया ट्रांसमिशन लाइन. एंड दिस इज डाइलेक्ट्रिक. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट these parameters LC will always be equal to mu epsilon and G by C will always be equal to sigma upon epsilon. For any transmission line, these two equations will always be consistent. Remember, while writing this equation, you have to be very careful that in this case L and C are in per meter constant. L और C इस बार दोनों आपके per meter constants होंगे, और साथ के साथ जो आपका this is per meter constants. In this case also G and C are per meter constants. अगर आप यूनिट वाइज भी देखना चाहें, what is the unit of L here? It is Henry per meter. What is the unit of C here? It is Farad per meter. And if you remember, the unit of mu is also Henry per meter, and the unit of epsilon is also Farad per meter. Similarly, there also per meter will get cancelled out. So in this case, per meter effect will not be visible, but there you can also very clearly see the effect of the per meter. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स याद रखना, इसको आगे यूज भी करेंगे. सो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर दैट इन केस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन नोटिस इज दैट the distributed parameters, the RLGC and the dielectric constants are associated in this manner. ये देखो RLGC तो पूरा का पूरा इसका इक्विवेलेंट सर्किट से आपको दिख जाएगा, और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है, this particular dielectric will have some mu, some epsilon and sigma. So there is a close association between this LC, mu and epsilon, GNC and sigma upon epsilon. So it is very easy to associate. ऐसा होता क्यों है, इसको बाद में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, but as of now try to remember this thing, that the parameters of the transmission line, the distributed parameters of the transmission line and the components of the dielectrics or the properties of the dielectrics are closely related. ठीक है, चलो फिर ये डिफाइन कर लेते हैं, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं. So I think you can very well remember all these things. So first of all we are defining about the distributed circuit parameters. तो कौन कौन से distributed parameters हम लोगों ने देख लिए. We have seen this R. What is this R? So as you can see, R is the resistance per unit length arises due to the resistivity in the conductor. तो जो भी conductor की resistivity होती है, because of that this R is arising, and you have to consider this R in term per unit meter. क्योंकि हम पूरे की पूरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए कोई KVL KCL नहीं लगा सकते, तो उसको बहुत छोटा करना पड़ेगा. एंड इफ यू कीप इट वेरी स्मॉल, देन यू शुड नो द पर यूनिट पैरामीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन. ऑन द सिमिलर बेसिस, अगर मुझे इस पूरी की पूरी यूनिट का रेजिस्टेंस निकालना होगा, सो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस. तो देखिए, यहां से लेके यहां तक की लेंथ आपने कितनी मान रखी है, डेल्टा जेड आपको दिख रही होगी. ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी दिख रही है, डेल्टा जेड. And if this complete length is delta z, then this particular resistance is representing the resistance of this complete unit, and the resistance can be calculated by multiplying the per unit parameter into the distance. Okay, चलो next पे आते हैं. L. What is L? L is inductance per unit length arises due to the stored magnetic energy around the line. कल मैंने बताया भी था कि जैसे जैसे आपकी करंट पास होती जाएगी, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनता जाएगा. दोज मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट विल लिंक एंड दे विल जनरेट अ इंडक्टेंस इन द कंडक्टर. सो दिस इंडक्टेंस इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड अराउंड द लाइन. अगेन देखो, यहां से लेके यहां तक की लेंथ आपको कितनी दिख रही है, डेल्टा जेड. अगर ये लेंथ डेल्टा जेड है और इस पूरी लेंथ का आपने इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको पता है एल, तो यहां से आपको अगर इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, यू विल मल्टीप्लाई दिस थिंग विद डेल्टा जेड. सिमिलरली G. What is G? G is the conductance per unit length arises due to the conductivity in the dielectric separating the conductors. तो इस केस में अगेन आप क्या करेंगे, बहुत छोटा सा डेल्टा z कंसीडर करेंगे, एंड इफ यू टेक अ वेरी स्मॉल डेल्टा z, सो इन दैट स्मॉल डेल्टा z द कंडक्टिविटी पर यूनिट लेंथ विल बी G. और अगर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी, यू कैन कैलकुलेट इट बाय मल्टीप्लाइंग विद डेल्टा z, एंड द सेम थिंग विल बी हैपनिंग विद द कैपेसिटेंस. So this C is capacitance per unit length, which is arising due to the stored electric energy between the conductor. अगेन आप डेल्टा जेड का छोटा सा लेंथ लेंगे, डेल्टा जेड के छोटे से लेंथ में आपको आर एल जी सी कैलकुलेट करना है. गिवन द फैक्ट यू ऑलरेडी नो द पर यूनिट पैरामीटर्स. सो इन दिस पर्टिकुलर डेल्टा जेड लेंथ, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द पर यूनिट पैरामीटर विद डेल्टा जेड. सो आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू एवरीवन. अच्छा, ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझिए. ये क्या लिखा हुआ है, पहले इसको स्टेटमेंट को पढ़ लो सब लोग, फिर मैं आगे इसको समझाता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय दिस. ओके, तो यहाँ तक सारे पॉइंट्स सबको क्लियर है.
आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग ऑल द पॉइंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर हम लोग एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल लेंथ ले लें, इन दैट पर्टिकुलर लेंथ यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंसेस, इंडक्टेंसेस, कैपेसिटेंसेस एंड कंडक्टेंसेस गिवन द फैक्ट यू ऑलरेडी नो द पर यूनिट पैरामीटर्स। ठीक है, चलो तो ये बोल रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करें RLGC, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, एंड आई हैव गिवन द पॉसिबल वेज टू रिप्रेजेंट दिस। तो ये सारे के सारे पॉसिबल वेज की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इस पे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। सो देयर आर बेसिकली दीज 4 ways to represent your transmission lines delta z distance in the form of RLGC parameters. So I hope till now everything is very easy and very understandable. अगर यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन में देखते हैं, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। सो आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन एंड दे विल मूव फॉरवर्ड। चलो जल्दी से बताइए। और देखो टाइम से आना आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई एक कॉन्सेप्ट छूट गया देन यू माइट नॉट कैच अप। सो एवरीवन हैज टू बी ऑन टाइम। ठीक है, मैं 1-2 मिनट ऊपर नीचे लेट हो सकता हूँ क्योंकि लाइव स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगा कि पहले ये क्वेश्चन सब लोग कम से कम एक बार पढ़ें, एंड आफ्टर दैट आई ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर आर 3 parts, out of which the C part is very important, and this C part will give you a lot of clarity that how can we proceed further, what are the derivations that is coming your way, how to calculate the transmission line equation. So first of all I would request everyone to at least read this question out. मैं भी आपके साथ साथ पढ़ता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है a 2 conductor transmission line is 10 centimeter long. 2 conductor transmission line का मतलब एक कंडक्टर ऊपर एक कंडक्टर नीचे, and it is 10 centimeter long. A sinusoidal signal of 1 volt peak amplitude is applied to one end of the transmission line. This point is also very clear to everyone. एक साइनोसॉइडल हम लोगों ने सिग्नल लगा रखा है जिसका पीक वोल्टेज 1 वोल्ट है, and it is applied to one end of the line. Fine. Then it is saying that if the transmission line, if the signal travels on the line with the velocity or the speed of the 2 into 10 to the power 8 meter per second. तो ये उसने velocity mention कर रखी है। A part में ये आपसे पूछ रहा है what is the transit time on the line. I hope everyone have read the question and everyone is ready to solve this question. Fine. तो ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। लेंथ जरा देखो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। सो इन दिस क्वेश्चन योर लेंथ इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे उसने एक सप्लाई लगाई है, ध्यान से देखना। ये सप्लाई की अगर हम लोग बात करें, वी कैन कॉल दिस थिंग एज A cos ओमेगा टी। ये तो सप्लाई उसने लगाई, तो यहाँ पे टाइम का फंक्शन उसने लगाया A cos ओमेगा टी, और यू कैन ऑल्सो से दैट योर VAA डैश will become Vt. You can write this thing as A cos omega t. Fine. ये जो आपने यहाँ पे velocity वेव लगाई वो कौन सी velocity से ट्रैवल कर रही? The velocity which is given in this case is 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लगेगा। So if I have to calculate the time will become L by Vp. What is L? It is 0.1 meter. And what is Vp? It is 2 into 10 to the power 8. So I hope this t or the transit time should come out to be 0.5 nanoseconds. So I hope everyone is getting the same answer, transit time. अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है। This point has to be understood very clearly that this particular waveform Vt is taking this tr time to reach from this AA dash end to BB dash end. So can you tell me what will be the value of this VBB dash end? It will also be some V1t. और देखो V1t यहां से पहुंचने में डिले कितना हो गया? Is it not V of t minus tr? How many of you are able to understand this very crucial point कि अगर ये Vt का वेवफॉर्म यहाँ था, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में tr का टाइम लगा, so what will be the representation of this VBB dash? So this VBB dash will be represented by V1t, or you can write this thing as कि ये मेरा सप्लाई वाला ही पॉइंट होगा, जस्ट इसको मैंने tr से शिफ्ट कर दिया। आ रहा सबको समझ में? दिस 0.5 नैनोसेकंड एवरीवन हैज कैलकुलेटेड करेक्टली। मेरा पर्पस यहाँ पे ये कैलकुलेट कराना नहीं, माय पर्पस इज दैट यू हैव टू कंसिडर कि अगर ये Vt वाली वेवफॉर्म चलते चलते यहाँ तक पहुंची जो कि V1t के फॉर्म में दिख रही, तो क्या ये tr से डिले ही तो हो जाएगी? यस और नो? डिले हो जाएगी tr से। इस बात पे सब लोग कन्विंस्ड हैं। आई होप एवरीवन इज कन्विंस्ड ऑन दिस पॉइंट। अब बहुत ध्यान से एक पॉइंट समझना यार, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देयर। What is the value of tr? If I have to write the value of tr, so I'll write it as L by Vp. तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिखता हूँ, this V1t will become A cos omega t minus tr. Fine.
or we can also write this thing as a cos ओमेगा। अच्छा, मैं t को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ जो इसके tr वाला पैरामीटर है, तो उस tr वाले पैरामीटर से मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, और वहाँ से देखना बहुत ही क्रूशियल चीज़ आपको समझ आएगी, वो आप याद भी रखना है आगे से, t माइनस एल बाई वी पी। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब मुझे आप बता सकते हो, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे सिर्फ टाइम का फंक्शन था, दिस वॉज द फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। एज दिस टाइम वेव फॉर्म is going forward and forward, is it becoming the function of time as well as space or not? Is it becoming the function of time and space simultaneously or not? इसका मतलब जैसे जैसे ये वेवफॉर्म आपके आगे बढ़ती जाएगी, ये टाइम के साथ साथ स्पेस का भी फंक्शन बनती जा रही है, यस और नो? सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन दैट इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन at any point, at any arbitrary point, your voltage will be the function of time only, the function of space only, the function of time and space both. There are three options which I am giving you, that at any particular point, अब obviously हम यहाँ पे AC supply दे रहे हैं, so once we are giving the AC supply at one end of the transmission line, the voltage at any point on the transmission line, the voltage at any arbitrary point on the transmission line, will it be function of time only, will it be function of space only, or will it be function of time and space both? So I think it is the function of time and space both. Why? क्योंकि जैसे जैसे आप ये L चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे obviously this L parameter will change significantly. तो जैसे जैसे आप ये टाइम आपने लगा रखा है सप्लाई, जो कि एक साइनोसॉइडल सप्लाई है, और ये सप्लाई जब आपके आगे मूव करती जाएगी, देन ऑब्वियसली इट विल बिकम द फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। व्हेन एनीथिंग बिकम्स द फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, कैन यू कॉल इट एज अ वेव और नॉट? जब भी आपको किसी भी चीज को वेव बोलना होता है, तो वेव का मतलब होता है वो टाइम का भी फंक्शन है एंड स्पेस का भी फंक्शन है। तो यहाँ से एक चीज और प्रूफ होती है कि अगर हमने एसी सप्लाई लगा दी ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट पे, so if AC supply has been applied at the input of the transmission line, that AC supply eventually gets converted into the form of wave, or it becomes the function of time as well as distance. ये point सबको clear हो गया? This was very crucial point which I wanted to give you in this question. ठीक है, चलो पहला part तो calculate हो गया, A part was very easy, and with the help of A part हमको ये भी पता चल गया कि at any arbitrary point, अगर मैं कोई भी arbitrary point consider कर लूँ, any arbitrary point, so the voltage at this point will be the function of both space and time. ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर कोई मुझसे वोल्टेज पूछेगा CC डैश पे, so I'll say that at this CC point it will be some function of space as well as time. इसको याद रखना है, ये आगे हमें यूज भी करना है। ठीक है, तो ये सबको याद रखना है और इसको आगे चल के हमें यूज भी करना है। खैर चलो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। In the B part, it is asking the frequency at which the transit time is 10% of the signal period. What it is asking? In the second part, it is asking you that your transit time has to be 0.1 times of the t. तो यहाँ से t कैलकुलेट कर लो। ट्रांजिट टाइम आपने निकाल रखा 0.5 नैनो सेकेंड्स इक्वल टू 0.1 into 1 by f. So I hope the f is coming out to be 200 megahertz for the B part. काफी आसानी से कैलकुलेट कर लिया होगा। इट शुड बी कमिंग आउट एज 200 मेगाहर्ट्ज। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से देख लो। फ्रीक्वेंसी एट विच द ट्रांजिट टाइम इज 10% ऑफ द सिग्नल पीरियड, सो इट इज आस्किंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी। सो सेकंड पार्ट इज ऑल्सो क्लियर एंड इट इज ऑल्सो ईजी। द थर्ड पार्ट इज इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट द थर्ड पार्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इन 1 मार्क। तो जो सी पार्ट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सी पार्ट आपको समझने की जरूरत है। सी पार्ट में देखो पूछना क्या चाह रहा है, एक एक चीज समझते हैं। इन द सी पार्ट इट इज आस्किंग यू अबाउट सिग्नल वोल्टेज वेयर on the other end of the line, which means it is asking about VBB dash. Remember, it is asking about VBB dash, and you have calculated VBB dash as A cos omega t minus tr. Fine. कौन से इंस्टेंट पे? An instant when the input signal is passing through the positive maximum फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 मेगाहर्ट्ज। ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं। इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द अदर एंड्स। इसको मैं हटा देता हूं। इट इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट, इसको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको ध्यान से समझिए। ये आपसे पूछ रहा है द वोल्टेज एट द अदर एंड, सो दिस इज द वोल्टेज एट द अदर एंड VBB डैश, फ्रीक्वेंसी इज मेंशन्ड एज 500 मेगाहर्ट्ज। ओके, नाउ it is asking you to calculate this particular thing at an instant. T के बारे में इसने mention कर रखा है। T is the instant where the signal is passing through the positive maximum
फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 मेगाहर्ट्ज। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सिग्नल, जो भी सिग्नल यहाँ पे हमने अप्लाई कर रखा है, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कब करेगा। सो यू नो दैट इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट एज t equal to 0, yes or no, will it achieve its maximum value at t equal to 0 or not? है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है अदर एंड का पोटेंशियल निकालना है, इस एंड का निकालना है, बट कौन सा इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे इनपुट वाला सिग्नल अपनी मैक्सिमम वैल्यू को या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को अचीव कर रहा है। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू कैन अंडरस्टैंड दिस Vt इज अचीविंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट t equal to 0. So let me put t equal to 0 here. T equal to 0. What is the maximum amplitude which is given in this question? Is 1 volt. Maximum amplitude question का already given it as 1 volt peak. चलो यहाँ पे निकालते हैं क्वेश्चन, कितना आ जाएगा, a cos minus omega tr. So you can calculate this value, a cos minus theta तो theta ही हो जाएगा. Omega is given as 500 megahertz. So this will become 500 into 10 to the power 6. tr you have calculated it as 0.5 nanoseconds. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आई थिंक वी आर गेटिंग a cos pi by 2 एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 0 वोल्ट। आ गया सबको समझ में? एनीवन इज देयर हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इवन द सिंगल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन 1 marks in the examination because your syllabus is now concentrated only around EM wave, transmission line, waveguide and antenna. So you cannot leave any loose end on these particular chapters. पहले आप छोड़ सकते थे because they were having lot of options and they were asking mostly the questions from basic physics. Now they have limited this particular syllabus, so you have to be sure for every topic that you are studying. कितने लोगों से हो गया ये क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, फिर आगे चलते हैं। समझ आ गया ना कि थर्ड पार्ट में, सी पार्ट में क्या पूछना चाह रहा था? सो आई होप यू हैव गॉट व्हाट इट इज वांटेड टू आस्किंग इन द सी पार्ट। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन बोल सकते थे कि सर कोई जरूरी थोड़ी है कि आप इसमें a cos omega t लेके ही चलें। बिल्कुल सही बात है, वी कैन नॉट स्टार्ट ऑलवेज विद a cos omega t, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस क्वेश्चन बाई टेकिंग द सप्लाई एज a sin omega t. So that is your homework in this case, because this was a subjective question, the supply was not given, so supply I have to assume from my end, इस वजह से मैंने cos omega t माना। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि साइन क्यों नहीं माना, तो वेरी वैलिड क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज अज्यूम दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी एज साइन एंड यू कैन गो फॉरवर्ड। तो एक पर्टिकुलर सप्लाई को रेफरेंस लीजिए एंड यू कैन कैलकुलेट योर आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन करेक्टली? कम से कम इस क्वेश्चन को समझ में आया, आंसर तो चलो बात की बात है, कम से कम ये क्वेश्चन समझ में कितने लोगों को आ गया? तो मुझे आप आंसर बताएं, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस, आई मीन नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी पार्ट, आई एम टेलिंग इट एज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Okay, it is very important part. This type of questions you might expect this year. Clear? आ गया ना सबको समझ में? ठीक है। So I hope I also answered this question कि a cos क्यों लिया, साइन ले लो, मुझे नहीं पता क्या लेना पड़ेगा। अगर गेट में क्वेश्चन बनेगा they will also give you the supply obviously. Okay? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए, so the next point is very important. Next point is very important. Now we have to study how the current and voltages can be calculated on a transmission line. So everyone has to be very careful while understanding this thing, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आएंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना। 1 घंटे आपको सिर्फ पढ़ना है, 1 घंटे यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट वेरी वेल। ओके, चलो क्वेश्चन में बोल रहा है वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशंस ऑफ द वोल्टेजेस एंड करंट वेव अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन। दिस इज समथिंग विच वी आर इंटरेस्टेड इन। चलो, अगर मान लो मैं एक डेल्टा जेड का बहुत छोटा सा सेगमेंट लेता, सो आई एम कंसिडरिंग दिस थिंग एज प्लस जेड। Hope everyone is getting that the complete transmission line when it is divided into delta z segment, ये छोटा सा मैंने delta z का सेगमेंट ले लिया और इस छोटे के से delta z के सेगमेंट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, कुछ ना कुछ इंडक्टेंस रहा होगा, कुछ ना कुछ कंडक्टेंस, कुछ ना कुछ कैपेसिटेंसेस रहा होगा। फाइन, सो दिस पर्टिकुलर थिंग r इंटू डेल्टा जेड विल बी हैविंग यूनिट ऑफ ओम, l इंटू डेल्टा जेड हेनरी, ये आपका कंडक्टेंस की यूनिट और ये फैरेड मीटर की। ये पॉइंट तो सबको समझ आ रहा है। नाउ द लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क, कैन आई कंसीडर voltage at any arbitrary point on the transmission line as the function of z and t? बोलो, क्या ये मैंने ठीक लिखा है या नहीं? देखिए मैंने क्या किया, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से देखो, ये देखो, ये पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन थी, कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन, कंप्लीट लेंथ इज l। ओके, आई हैव टेकन दिस डेल्टा z सेगमेंट, ये डेल्टा z सेगमेंट मैंने बाहर निकाल के रखा, दिस विल बिकम r डेल्टा z, this will become L delta Z, this will become G delta Z, this will become C delta Z. So ये छोटे से सेगमेंट का कुछ ना कुछ R रहा होगा, कुछ ना कुछ L रहा होगा, इसके बीच में जो ये डाइलेक्ट्रिक है इसका कुछ G रहा होगा,
कुछ सी रहा होगा। इस छोटे से सेगमेंट को जस्ट मैंने एक्सपैंड करके दिखा दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऑब्वियसली ये देखो यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये z इक्वल टू 0 है और ये z इक्वल टू l हो जाएगा। ध्यान से समझते रहना, मैंने बीच में डेल्टा z का सेगमेंट लिया और ये किसी आर्बिट्रेरी z इक्वल टू z पे कंसिडर किया। सो आई हैव टेकन एनी आर्बिट्रेरी z इक्वल टू z थिंग। आपने यहाँ पे सप्लाई लगाई होगी, you would have applied the supply here. So this was the supply point and you can call this point as V as a function of t. So can I consider at any arbitrary point z the supply or the voltage which is present there as the function of z and t both? So I think I can consider this thing as the function of both z and t. So this point has to be very clear कि why in transmission line we consider the supply at any arbitrary point as the function of z and t. तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट हम लोगों ने zt माना है। तो देखो यहाँ से अगर v ऑफ z कॉमा t आपने माना है तो यहाँ से करंट कितनी जा रही होगी, द करंट विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ z कॉमा t। ये कोई आर्बिट्रेरी हमने पॉइंट कंसिडर किया, रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। एंड इन दिस सेगमेंट द वोल्टेज विल बी z प्लस डेल्टा z y बिकॉज एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ z इज z प्लस डेल्टा z। इस वाले पॉइंट पे z कितना है, इस वाले पॉइंट पे आप z लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे z चेंज करते जाओगे दिस रिप्रेजेंटेशन विल चेंज सिग्निफिकेंटली। सिमिलरली इन दिस सेक्शन आई कैन कंसिडर माई करंट एज I ऑफ z प्लस डेल्टा z कॉमा t। तो पहले तो ये रिप्रेजेंटेशन समझिए, मुझे लग रहा है ये रिप्रेजेंटेशन आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। समझ आ गया सबको ये रिप्रेजेंटेशन कि क्यों हमने इसको z कॉमा t माना। इन द लास्ट क्वेश्चन आई हैव गिवन यू द रीजन। सिमिलरली यू कैन कंसिडर द करंट ऑल्सो एज द फंक्शन ऑफ z एंड t एंड जैसे ही इस वाले यूनिट के आगे ये जाएगा आप इसको z प्लस डेल्टा z से डिनोट कर दो, क्योंकि हम असल में अगर यहाँ पे कंसिडर करना चाहते करंट तो हम यहाँ पे करंट कंसिडर करने में इंटरेस्टेड हैं। सो एट दिस एंड इफ यू कंसिडर अ करंट, सो एट दिस एंड z विल बिकम z प्लस डेल्टा z। वही करंट आपकी पूरी की पूरी लाइन में इस वाले सेगमेंट में फ्लो करेगी। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर भी देते रहो यार कमेंट सेक्शन में, एक्नॉलेज भी करते रहिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू आर फॉलोइंग मी व्हाट आई वांटेड टू टीच यू। ओके, चलो समझ आ रहा है सबको, यहाँ तक चल सकते हैं आगे, फाइन चल सकते हैं। ओके चलो अब मुझे बताना, अगर मैं ये कंप्लीट जो यहाँ पे सेगमेंट दिख रहा है, फॉर दिस कंप्लीट सेगमेंट इफ आई वांट टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस, व्हाट विल बी द इम्पीडेंस ऑफ दिस कंप्लीट सेगमेंट? सो द इम्पीडेंस विल बिकम r प्लस j ओमेगा l इंटू डेल्टा z। यस और नो, टेल मी। देखो यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, इन दोनों को सीरीज में आपने देखा, यू कैन डायरेक्टली ऐड देम एंड यू कैन मल्टीप्लाई द कंप्लीट थिंग विद द डेल्टा z, क्योंकि इसका इंपीडेंस डेल्टा z है, यहाँ पे j ओमेगा वाला फैक्टर आपको लगाना पड़ेगा। सिमिलरली इफ आई हैव टू कैलकुलेट द एडमिटेंस ऑफ दिस थिंग, व्हाट विल बी द एडमिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? सो आई थिंक देयर आल्सो यू कैन से इट विल बिकम g प्लस j ओमेगा c डेल्टा z। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको ये पॉइंट नहीं पता होगा। ये अगर दोनों पैरेलल में होते हैं सो वी कैन ऑलवेज ऐड द एडमिटेंसेस एंड इफ दे आर सीरीज वी कैन ऑलवेज ऐड द इम्पीडेंसेस। ठीक है, चलेगा ही? ओके, तो आई हैव गिवन यू द एडमिटेंस एंड द इम्पीडेंस ऑफ दिस कंप्लीट सेगमेंट। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, नाउ आई वांट टू अप्लाई द KVL एंड KCL ऑन दिस पर्टिकुलर लूप्स। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं KVL और KCL लगाना चाहता हूँ इस इनर लूप में। सो इफ आई वांट टू अप्लाई द KVL इन दिस इनर लूप, व्हाट विल बी द KVL लगाना सबको आता होगा। KVL अगर आप लगाने जाएंगे इस पर्टिकुलर, अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ अभी, ठीक है, मैंने दोनों चीज़ें दिखा दी, तो मुझे अभी y की ज़रूरत नहीं है, y मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हमें ज़रूरत होगी y की। ठीक है, अभी हमारा इसी से काम चलना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने KVL लगाया। सो इफ यू आर अप्लाइंग द KVL देयर, आई एम राइटिंग द एक्सप्रेशन, यू कैन ऑल्सो टेल मी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सो आई विल राइट इट एज v ऑफ z कॉमा t इक्वल टू I ऑफ z कॉमा t and it will be multiplied by the impedance which will be r plus j omega l into delta z। यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके क्रॉस देखो पोटेंशियल कितना है, व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट? सो इफ यू लुक क्लोजली द पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट इज नथिंग बट v ऑफ z प्लस डेल्टा z कॉमा t। सो आई कैन राइट दिस थिंग एज प्लस v ऑफ z प्लस डेल्टा z कॉमा t। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, लेट मी राइट दिस थिंग एज v ऑफ z प्लस डेल्टा z कॉमा t minus v of z comma t upon delta z, and this will become equal to minus of r plus j omega l I of z comma t। very simple expressions, you can write it like this। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आपने जो छोटा सा सेगमेंट लिया था, इस छोटे से सेगमेंट की आपने लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाई थी? सो एवरीवन नोज कि जो छोटा सा सेगमेंट लिया था वो इसी शर्त पे लिया था कि वो टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, देन ओनली दिस डेल्टा z
will become very much less than lambda. तभी ये delta z जो आपका है it will become very much less than lambda. Then only we can apply the KVL KCL. तभी जो आपने अभी KVL लगाया है ये वैलिड होगा. एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. So again we have to put limit delta z tending to 0. This will become z plus delta z comma t minus z comma t. Upon this will become delta z. And you can write this thing as, अच्छा दोनों तरफ लिमिट लगानी पड़ेगी ना, ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक तरफ लगा दोगे तो काम चलेगा, तो इधर भी आपको लिमिट लगानी चाहिए. So this will also become limit delta z tending to 0 minus r plus j omega l I into z comma t. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है. चलिए, लिमिट z टेंडिंग टू 0. मुझे आप बताओ कि आपको कितने लोगों को ये दिख रहा है, असल में कितने लोगों को ये पॉइंट दिख रहा है कि व्हाट इज दिस. देखो z को टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं. इज इट नॉट डेल v z कॉमा t बाई डेल z? ऐसे ही तो लिखते हो यार. If you will define the differentiation, how will you define the differentiation? In this case, your time is fixed, which means this particular differentiation has to be partially with respect to del z. दो पैरामीटर्स है ना, z और t. दो पैरामीटर z और t दिख रहे हैं. आप लिमिट डेल्टा z को टेंडिंग टू 0 पुट कर रहे हैं. So this will eventually become a partial derivative with respect to z as a function of z, t. राइट हाफ साइड में आप देखिए, इन राइट हाफ साइड डू यू हैव एनीवेयर रिटन एज डेल्टा z? यहाँ पे कहीं पे भी डेल्टा z नहीं लिखा है. So it will remain as it is. So this is very important expression that you are getting it here. ये आपको मिल जाएगा I of z comma t. ठीक है, चलो. Calculation is clear to everyone. Very simple calculation. Only thing you must understand, और ये basic derivation I hope everyone can understand कि ये आपका differentiation का format हो जाएगा. So what is the equation that you are getting? So you are getting the first equation as upon del t, which is equal to minus of r plus j omega l I of z comma t. Let me call this thing as equation 1. Okay, clear? So equation 1 is clear to everyone. चलो second part पे आते हैं. Second पे देखिए. In this case, again the same expressions are given. Now I'll use this as your admittance. इसका admittance अगर मैं calculate करूँ, so admittance is coming out to be y equal to g plus j omega c delta z. The current which is coming from here is I of z comma t, and the current which is leaving this terminal is z plus z delta z comma t. ठीक है, चलो अब मैं इस एंड पे क्या करना चाहता हूँ, KCL लगाना चाहता हूँ. I want to apply KCL at this end. चलो लगाओ KCL, देखो क्या मिलता है. If you will apply the KCL at this particular end, आपको दिख रहा होगा एक इनकमिंग करंट, एक ये करंट और एक नीचे जाने वाली करंट. ठीक है, जो करंट आपके नीचे जा रही, what will be that particular current? You know the admittance of this particular section and you know the potential of this particular end. तो यहाँ से जो करंट नीचे जा रही होगी, let me call it as I1. This I1 will become y into v of z plus delta z comma t. Yes or no? I1 के बारे में everyone is comfortable. अगर मैं नीचे जाने वाली करंट कैलकुलेट करूं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना दिख रहा है एंड एडमिटेंस कितना दिख रहा है. सो और साइन भी देखो प्लस माइनस लगा रखा है, तो साइन का भी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन बचा है क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ करंट जाएगी. सो दिस करंट डायरेक्शन विल बी लाइक दिस. यू कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल और इसको मल्टीप्लाई कर लेना इसके एडमिटेंस से. I1 विल बिकम y इंटू वी इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी. तो यहाँ पे मैं KCL लगाता हूँ. KCL जरा देखिए कैसे लगेगा. The KCL will become I of z comma t. KCL will become I of z comma t equal to I of z plus delta z comma t. और यहाँ पे देखना जो दूसरा वाला आएगा वो आपको मिलेगा g plus j omega c into delta z into v of ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर. चलो आगे चलते हैं, फिर इसमें भी वही चीज़ लगा देते हैं. मैं क्या करता हूँ, लेट मी ऑल्सो राइट इट हियर. I of z प्लस डेल्टा z कॉमा टी माइनस I of z कॉमा टी. दिस विल बिकम माइनस ऑफ g प्लस j ओमेगा c डेल्टा z v of z प्लस डेल्टा z कॉमा टी.
डेल्टा जेड को नीचे ले आओ और लिमिट लगा दो. सो अगेन यू विल गेट लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 आई ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी माइनस आई ऑफ जेड कॉमा टी अपॉन डेल्टा जेड. This will eventually become limit delta z tending to 0 minus g plus j omega c v of z plus delta z comma t. इस बार थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है लास्ट केस से, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे. इन दिस केस अगेन द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट मच डिफरेंट. यू कैन राइट दिस थिंग एज del I both function of z and t divided by del z और विद रिस्पेक्ट टू डेल जेड. इस केस में डेल्टा जेड वाला फैक्टर आ रहा है यार, लास्ट केस में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे आपको इसको पुट करना पड़ेगा. इफ यू पुट डेल्टा जेड इक्वल टू 0 दिस बिकम्स माइनस जी प्लस जी ओमेगा सी इंटू वी ऑफ जेड कॉमा टी. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. सो वी हैव ड्राइव टू इक्वेशंस, बोथ द इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसी के बेसिस पे आपकी आगे की कैलकुलेशन चलेगी. आगे चल के आपको एसी ट्रांजिएंट भी पढ़ना है यार, तो सारी चीजें अगर आप बेसिक से रिलेट करते चलेंगे टॉपिक्स विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू. सो टिल नाउ वी हैव गॉट टू इक्वेशंस. द फर्स्ट इक्वेशन वाज del z equal to minus r plus j omega l I as a function of z and t. Similarly, the second equation that we have got is which is equal to minus of g plus j omega c into v z comma t. कितने लोगों को ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई यार? बोलो. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, है ना. कोई भी चीज़ हम लोग फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉसिबल पॉइंट विच इज नीडेड. मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ डेल्टा ले लो, डेल्टा कर लो, डेल वी लिख लो, डेल जेड लिख लो. दैट विल नॉट गिव यू क्लैरिटी. अल्टीमेटली यू विल बी कंफ्यूज इन द केस ऑफ ट्रांजिएंट्स. और ये समझ आ गया, ट्रांजिएंट्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. फाइन, ये दो इक्वेशंस निकल गई. अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करता हूँ. इफ आई डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, तो आप देखेंगे, देखो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये del 2 अपॉन del z स्क्वायर हो जाएगा, ये del I अपॉन del g हो जाएगा और ये वैल्यू वापस से पुट कर देते हैं. सो दिस इक्वेशन बिकम्स del z स्क्वायर इक्वल टू r प्लस जे ओमेगा एल g प्लस जे ओमेगा सी v of z comma t. Let me call this thing as equation 3. Hopefully everyone is understanding this point. I have just differentiated it with respect to z. It will become del I by del z और ये del I by del z की ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दी. On the similar basis, if you differentiate equation 2, these are simple calculations. इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं. मैं पहले ही बता चुका हूँ, समझने वाला पार्ट कल ओवर हो चुका है. Now today we have to be mathematical and we have to see whether we are consistent with everything that we are studying or not. So सारी चीज़ें आपकी consistent होनी चाहिए, जो भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी. So this will become g plus j omega c and I of z comma t. Can I write it like this or not? Okay, can you write it like this? I hope everyone can write it like this. These are the two equations which is very important for us. और ये दोनों इक्वेशंस हम लोग आगे लेके चलते हैं. मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, कुछ भी बिल्कुल नया नहीं है. The yesterday's class was very difficult to teach and understand, but I hope that class went very smooth. So आगे के आने वाली क्लासेस में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई. अभी मैं क्या करता हूँ, let v of z comma t and I of z comma t are time harmonic. What do you understand by time harmonic? Time harmonic fields or time harmonic functions, whatever you want to write it as. तो मैंने बताया था इसमें दो वर्ड्स देखना, टाइम हार्मोनिक विच मीन्स पीरियोडिक विद टाइम एंड फंक्शन विच मीन्स सम फंक्शन ऑफ स्पेस. सो यू कैन राइट v of z comma t as vz into e power j omega t. Possibly there might be thousand of expressions that can be written in the form of time harmonic. Time harmonic, this is the time harmonic term. It is time harmonic and this function of z will give you the function or the field. ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया. अब देखो, अगर इसको z के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं दो बार, if we differentiate this thing with respect to z 2 times, so will you tell me ये पूरा का पूरा j omega t कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा या नहीं? अगर मैं इसको z के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट कर दूं with respect to z,
whether this particular thing will be treated as a constant or not. So you can write this thing as e to the power j omega t del 2v z upon del z square. Yes or no? है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो टाइम को तो वैसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं. Similarly for the current also, current is also time harmonic, so you can write it as time अलग, टाइम हार्मोनिक अलग, फंक्शन अलग. देयर ऑल्सो अगर आप इसको दो बार z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन यू विल गेट e टू द पावर j ओमेगा t del 2 iz अपॉन del z स्क्वायर. फाइन. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई. चलो, टाइम हार्मोनिक की वजह से हम लोग मॉडिफाई करते हैं अपने इक्वेशंस को. तो जो पहली इक्वेशन आपकी थी, इट वाज, ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार. इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये क्योंकि इसका आगे यूज होता है v ऑफ z कॉमा टी. तो टाइम हार्मोनिक के केस में यू रिमेंबर दिस पॉइंट कि यहां से भी आप इसको लिख सकते थे del 2v अपॉन del z स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ z ओनली. e पावर j ओमेगा टी वाला फैक्टर यहां पे भी आ जाएगा, इक्वल टू r प्लस j ओमेगा n g प्लस j ओमेगा c एंड दिस विल ऑल्सो बिकम vz e पावर j ओमेगा t. ये e पावर j ओमेगा t, e पावर j ओमेगा t दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा and you will finally get it as only the function of space. So this becomes only the function of space, r plus j omega n g plus j omega c. On the similar basis you can also write it out for the current. Del z square equal to r plus j omega n g plus j omega c into iz. ये दोनों इक्वेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट. So remember, these two equations can be written only when the field is time harmonic in nature. Only when v of z comma t is vz into e power j omega t, I of z comma t is equal to iz into e to the power j omega t. Fine. ठीक चल रहा था, समझ आ रही ना सारी चीजें. कुछ भी फॉर ग्रांटेड मैंने लिया नहीं. पहले मैंने स्पेस और टाइम का फंक्शन बताया, देन आई सेड द सेम इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्पेस इफ यू कंसिडर इट एज द टाइम. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने सिर्फ स्पेस का फंक्शन बना दिया, ऐसा कभी होगा नहीं. कभी भी ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस योर वोल्टेजेस एंड करंट नेवर इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ ईदर टाइम और स्पेस सेपरेटली. दे हैज टू बी द फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट फॉर द ईज ऑफ द कैलकुलेशन we have considered this thing as the time harmonic. और टाइम वाले टर्म को मैंने हटा दिया. मुझे पता है मैं जब चाहूँ तब टाइम वाले टर्म को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ. If I solve this differential equation for Vz, we can always achieve this v of z comma t just by multiplying e to the power j omega t to it. है ना? Are you convinced with this point? कि अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, इससे Vz अगर कैलकुलेट कर लें, so to obtain this v of z comma t is not a difficult task. We just have to multiply e to the power j omega t. विच इज वेरी इजी टू ऑब्टेन. ठीक है, तो वही फेजर वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो ईएम वेव में पढ़ा था. फेजर ले सकते हो, कॉस में लिख सकते हो, साइन में लिख सकते हो. द सेम थिंग वी विल यूज हियर ऑल्सो. चलो यहाँ तक समझ आए. अभी क्या करते हैं, ये बार बार दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा सा कंसाइज कर लेते हैं. ये चीज़ इतनी लेंदी लिख रही है दिखने में, इसको बोल देते हैं दिस इज गामा स्क्वायर. बार बार इतना कौन लिखेगा, तो इसको नाम दे देते हैं गामा स्क्वायर. व्हाट इज दिस गामा स्क्वायर? Gamma square is r plus j omega n g plus j omega c, or the gamma can be written as r plus j omega l into g plus j omega c. Fine. So very clearly you can see that this particular thing is depending on RL, GC and frequency. So it is the function of RL, GC, primary constants and frequency. So you can say that this will be obtained with the help of the transmission line plus input. तो ये पैरामीटर तभी पिक्चर में आएगा जब इनपुट की फ्रीक्वेंसी मिलेगी इसको और ट्रांसमिशन लाइन के प्राइमरी कांस्टेंट्स मिलेंगे.
बाद में इसको चल के हम लोग डिफाइन करेंगे. इट विल बी नोन एज योर propagation constant of a transmission line. Remember, this particular gamma is dependent on the transmission line as well as the input. If input is not present, if there is no input, which means the frequency parameter or the omega parameter will not come in the picture, in that case you cannot calculate your gamma. So gamma is the function of your transmission line parameters as well as for the frequency. This is known as propagation constant of a transmission line. Any transmission line, once you will give the supply, तो ये बताएगा कि आपकी वेव को कैसे propagate करना है. So this gamma factor will always be telling you how the voltage wave or the current wave will propagate, whether they will attenuate, whether they will not attenuate, whether their transmission will be smooth or their transmission will be not smooth. So that things will be depicted by this gamma factor. Eventually we will break this gamma into two different parts, but as of now we are not interested. We are only interested in the fact that we have calculated this del 2v upon del z square and del 2i upon del z square as r plus j omega l g plus j omega c and r plus j omega l g plus j omega c. So eventually what you can say that you have got two expressions, del 2 vz upon del z square equal to gamma square vz and del 2 iz upon del z square equal to gamma square iz. So ये एक्सप्रेशन हमको मिले. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे देखना बड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. आई होप सब लोग समझ पाएंगे. यहाँ पे देखना वेरी क्लियरली यू कैन सी दैट इट इज़ द फंक्शन ऑफ z ओनली. तो आप चाहते तो इसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन भी लिख सकते थे. वेन एवर डिफरेंशियल दिस पार्शियल डिफरेंशिएशन इज अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू सिंगल पैरामीटर, ये नॉर्मल डिफरेंशियल की तरह काम करते हैं. तो एवरी वन कैन सी that this is a differential equation of homogeneous type. दिख रहा है ना सबको डिफरेंशियल इक्वेशन? तो सॉल्व कर लेंगे आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को. आई कैन एवरीवन कैन सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी सॉल्व इन टुमारोज क्लास. कल की क्लास में हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. वी विल ऑल्सो try to develop the equations of the voltage wave and current wave. We will define the characteristic impedance and we will solve lot of questions in the tomorrow's class. तो कल की क्लास में इनिशियल 3 क्लासेस मिला के आपका ट्रांसमिशन लाइन का जो क्रिस्प है दैट इज वेरी मच प्रिपेयर्ड. आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर द डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन्स. व्हाट आर द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, व्हाट आर द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन्स. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिफाइन डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन्स. फाइन. ओके, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है सब कुछ समझ आया सबको. ओके, तो चलिए रिवाइज कर लें क्या क्या डिस्कस किया आज की क्लास में. सो लेट मी गिव यू द क्विक रिवीजन दैट व्हाट डिड वी स्टडी इन टुडेज क्लास. तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने आज भी पढ़ लिया. इन टुडेज क्लास आई गेव यू द आइडिया दैट हाउ द पैरामीटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द लाइन. आफ्टर दैट आई डिफाइंड द पैरामीटर्स आर एल जेड सी. दीज पैरामीटर्स आर डिफाइंड. अच्छा, एक बात याद रखना, ये जी को कभी 1/r मत लिख देना. ठीक है, ये जी किसका है? ये तो डाइलेक्ट्रिक का है ना, और ये आर किसका है? इसका. तो ऐसा मत कर देना दोनों की यूनिट डिफरेंट है तो आर को 1/g ले लो. ये दोनों मटेरियल डिफरेंट है. ये कंडक्टर है, ये डाइलेक्ट्रिक है. ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना. चलिए, एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ये मैंने बताया. वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी डिड. द सी पार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस that you have to understand, and with the help of the discussions we have understood this very clearly. Then I explained you about the transmission line and I gave you the reason why at any single point on the transmission line your voltage is the function of space as well as time. वो यहाँ से मैंने proof करके भी दिखाया आपको. ठीक है. Then we discussed about the voltages and current wave along the transmission line. So to understand this point we have taken the fact in the consideration that at any arbitrary point z equal to z the voltage will be the function of z and time. और अगर डेल्टा जेड आगे निकल गए तो ये जेड को डेल्टा जेड से रिप्लेस करना पड़ेगा. फिर हम लोगों ने कुछ केवीएल केसीएल लगाए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डराइव करे, एंड फाइनली वी केम टू द पॉइंट वेयर वी अंडरस्टूड दैट द वोल्टेजेस और करंट along the transmission line will be converted into a differential equation and only the function of z. We can always jump this function of z to the function of z and time just by multiplying e to the power j omega t to it. ठीक है. चलो, तो अब बारी आती है आपके सवालों की. हाँ, तो कितने लोगों को आज की क्लास में सब कुछ समझ आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? इफ यू हैव फोकस्ड वेरी प्रॉपरली, अराउंड 50 to 55 minutes आर very crucial, very important and very interesting also if you have developed the interest in the transmission line. If you are revising it properly, if you are understanding all the points which I am telling you properly, then you will gradually develop the interest in this subject, because the mathematical analysis should also be supported by the physical phenomena which is present in a very interesting subject known as electromagnetic field theory.
ठीक है, ओके, चलो ये पॉइंट समझ आ गया। सेकेंड पॉइंट, सेकेंडली 9:35 से भी एक सेशन है इन विच आई एक्सप्लेन यू हाउ यू शुड स्टडी EMFT इन अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर और इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। तो 9:35 पे आना मत भूलना, वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि गेट वाले जो वो क्वेश्चन कौन सी बुक से उठाते हैं। तो मैंने एक साइड पे कॉलम बना रखा गेट क्वेश्चन का, ऑन द वेरी नेक्स्ट साइड आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ द बुक्स, फ्रॉम देयर दे हैव लिटरली लिफ्टेड द क्वेश्चन एज इट इज विदाउट इवन चेंजिंग द डेटा, एंड इन सम क्वेश्चंस दे हैव जस्ट चेंज्ड द न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो ऐसे 7-8 एग्जांपल्स में बताऊंगा, एंड आई विल आल्सो लेट यू नो दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द स्टैंडर्ड बुक्स सॉल्व क्वेश्चन, एटलीस्ट कौन से चैप्टर के कौन से स्टैंडर्ड बुक के सॉल्व क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें, सो दैट वी कैन फील मोर कॉन्फिडेंट और वी कैन सॉल्व अ क्वेश्चन विच कैन नॉट बी सॉल्व बाय द मेनी पीपल। ठीक है, It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.